जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अ, हमारी कंपनी के बारे में जानने के लिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। हमारा स्टार्टअप जो है 4 साल पुराना है। हमने 2016 में शुरू किया था और हमने एक आउटलेट से शुरू किया था जो बड़ौदा में लाइव आउटलेट। हमारा अपना सोचना था कि ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में लोगों को अगर किसी चीज़ की सबसे बड़ी परेशानी है तो वो ये है कि उनका कपड़ा प्रोसेस कैसे होता है, कुछ पता नहीं होता। क्या करते हैं कपड़े के साथ, किस तरह की मशीनों से या किस तरह की लोकेशन पर धुलता है, तो वो एड्रेस करने के लिए। दूसरा, बाजार में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमी है प्रोफेशनल क्लीनिंग पार्टनर्स की, जो कि किसी भी कस्टमर के गारमेंट्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोसेस कर पाए। तो कंसिडरिंग ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स वी ओपन्ड अ लाइव आउटलेट इन बड़ौदा। तो हम जितने भी पार्टनर हैं वी ऑल आर फ्रॉम टेलीकॉम बैकग्राउंड। We thought that this industry is similar to what is telecom currently, uh, and this industry is almost at par with the kind of revenue telecom industry is having. लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड है। शायद टेलीकॉम जो 1996-97 में था जब शुरू हुआ था, ये इंडस्ट्री भी उसी जगह खड़ी हुई है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप देखेंगे अभी हमारे प्रेजेंटेशन में अभी आपको समझ में आएगा कि जिस साइज की इंडस्ट्री है उसके हिसाब से यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बहुत कम है। आपको एक भी नेशन वाइड ब्रांड नहीं मिलेगा अदर देन वॉट एवर कम अप इन लास्ट कपल ऑफ years. So we come up with a live outlet kind of a strategy which is providing transparency, affordability, as well as quality. So this motto that we started our business with has worked very well with us. uh, we have grown in last 4 years uh, in 7 cities, and we did all the work that is required to establish a franchise business. We understood inside out of each and every part of the operation. We can now help people to understand if they are starting a business with us, to understand what they should do and what they should not. At the same time, we are also having a very organized structure with respect to the supplies, with respect to the training, with respect to outlet development, with respect to customer development. Uh, we are coming up with a number of features which are first in the industry, like establishing a call center, like establishing professional uh, uh, relationship management. uh, we are also establishing customer retention processes in place. So these all things will help franchisee in a long run, because हमारा फोकस ही कस्टमर एक्वायर करना है। फ्रेंचाइजी हम इसलिए चाहते हैं कि किसी एरिया में अगर मैं अपना कंपनी आउटलेट खोलता हूँ तो मैं वहाँ एम्प्लॉय अपॉइंट करूँगा, तो वो एम्प्लॉय हो सकता है उस लेवल पर काम ना करें जिस लेवल पर एक पार्टनर करता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएटेड रहता है। ज्यादा काम तो ज्यादा पैसा, लेकिन एक एम्प्लॉय का मोटिव रहता है कि ज्यादा काम तो अगली बार का टारगेट ज्यादा। तो आइडिया ये है कि फ्रेंचाइज बिजनेस के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करें, ज्यादा से ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ बिजनेस ऑपरेशंस करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एंगेजमेंट को रखें। और once we are having a sizable customer base, then we look for the other opportunity for the same customer that is being acquired by the franchise. So this is what the motto of the company. We are currently having 3 live outlets. One is in Baroda, which was our first outlet. Then we opened one in Noida. Then last year we opened one in Surat. So these are the 3 live outlets. We are operating 4 indigenous plants.
which are all, working on American or Spanish machines. We have tried number of machines to identify which work best for the operations, and we did it all on our own expense. So these are three live outlets. We are having 4 plants. We are also into B2B industry wherein we serve hotels, hospitals वगैरह, जिनके लिए हमारे पास 3 प्लांट हैं. उसके अलावा हमारे पास 18 कलेक्शन सेंटर्स हैं. ये सब मिलाकर we are doing a decent job. Our turnover is somewhere around 10 crores per year, and this year it will be impacted with Corona. Otherwise, this year we would have been expecting to cross 15 crores. So this is what the company stands for. We are a private limited, brand owner, and we are registered with the company registrar office. So everything that is there with us is transparent. That is what we stand for. So going forward, Yashesh will take you through for a business opportunity that is lying with us, and he will be covering why this business is, is the least affected by, uh, you know, problem like Corona. This is least impacted by uh, recession. This is least impacted by uh, the other problems in life, because this is one of the business which is associated with daily utility. You will realize that uh, there are only three kind of businesses that were operating uh, in Corona time. One is food, whosoever was a grocery supplier. Other one is the medical business, and the third one was telecom. So after these basic utilities, the fourth one is that we are a civilized, you know, human, civilized animal, and we need to have garments. So other than these food, medical, and telecom, whatever customer use, household, garments, car, sofa, everything associated with them, we can, help some or other way. So this is why this is one of the daily utility business, least impacted by Corona, least impacted by uh, things like recession and so on and so forth. Um, there is a huge opportunity, uh, and it is a very quick business with respect to achieving break even. So going forward, slide wise, Yashesh will take you through the entire presentation that is there with us. He is heading our franchise business across the country, and he is doing a decent job. He is, working on starting 2 new cities. One is Ahmedabad and other is Rajkot. So we'll be present, in newer cities very soon. This is why this opportunity and this call is here, where people can identify uh, the utility of this business. Feel like associating, then they can get in touch with us. We'll help them end to end, and I believe you people will find it interesting uh, as a future prospect for a probably secondary revenue source or second earning source with your current business. Number of people can associate their current business with this kind of new business. Like all those people who were running gym, they are finding it hard to survive. All those people who are having decently running food business, they are also struggling. But this our business is already there around 60% of what it was before Corona, and probably in a month or so will be reaching the pre-Corona sales levels again. So this is where we are standing as of now. So I'll invite Yashesh to take it forward from here on. Right? Thank you, guys. Thank you, sir. Welcome all participants and a very warm welcome to all of you. So, are you looking for alternative source of income? Are you looking for less affected business? Are you looking for daily utility business? Please reply with yes
in your chat box? If yes, then welcome to Laundry House. We are India's leading and largest chain of premium dry cleaning service. This is our actual live store photo of Baroda. So our journey so far, we have started our operations with a live store in Baroda in August 2016. The next year in November 2017, we started with home cleaning service, bag cleaning service, and other services. In January 2017, we have launched our operations in Delhi NCR region and achieved 3+3x growth. Actually, right now we have 18+ stores in Delhi. And last year, in April 2019, we have launched our live store in Surat, that is of 2,300 square feet at Dumas, Surat. That is our franchisee store. So presently we have 20+ stores pan India. So this is our, actual view of our Surat and Baroda flagship store. You can see the reception, dispatch, processing unit. So it's a, a modern and high-tech live store. Last year we have started in Surat. So why TLH? Why the laundry house? The opportunity is that because it's a busy schedules, long processes, and unreliability of local laundry players, difficulty in getting maid servants, and lack of specialized professional wash care, unavailability of one-stop solutions, other priorities in life such as family, leisure, work, etc., and rise in income levels. So the process that we do, it's complete professional, So we do give the clothes in packing. When I say packing, means with shirt card, plastic bag. Yashesh, I request you to keep a mixed language. Sure. I don't know if everybody is well versed in English. हिंदी भी यूज करो, इससे Sure. आपको फायदा होगा. Sure. लोगों को समझ में आना चाहिए, कम्युनिकेशन ऐसा है. हाँ जी. So solution ये है कि भाई 10 hours per week spend होता है लॉन्ड्री पे, जो कि काफी ज्यादा है per week. So why people will prefer TLH? Then high-end laundry, it is very expensive, less spread. And online laundry again क्या है कि भाई ऑनलाइन लॉन्ड्री में आपको पता नहीं है कि कौन आपके कपड़े धो रहा है. ऑनलाइन कोई बुकिंग कर रहा है बट आपको पता नहीं लोकल धोबी घाट पे आपके कपड़े धुल रहे हैं, कहाँ धुल रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ नहीं हो रहा है. और नेबरहुड लॉन्ड्री में क्या है कि अगेन जैसे मैंने बताया कि उनका नॉलेज लिमिटेड है और कहाँ प्रोसेस वो करते हैं, आपका ड्राई क्लीनिंग कहाँ होता है आपको पता नहीं होता, बिकॉज जितने भी आज लोकल लॉन्ड्री हैं उनका खुद का प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, वो भी आउटसोर्स करते हैं. हमारा कंप्लीट इन हाउस प्रोसेसिंग है. हमारा बिगेस्ट यूएसपी जो मैंने बताया दैट इज ट्रांसपेरेंसी. अभी हम यूएसपी पे आते हैं. जैसे मैंने बताया हमारा ट्रांसपेरेंट ड्राई क्लीनिंग सर्विस है. एनीबडी एनी वेदर इज अवर कस्टमर, अगर वो हमारा कस्टमर है या नहीं है, ही कैन विजिट अवर स्टोर. वो देख सकता है लाइव लॉन्ड्री, लाइव ड्राई क्लीनिंग. वी इनवाइट देम, वी वेलकम देम. और वन स्टेप सॉल्यूशन है, जैसे कि सर ने बताया हमारा लाइव लॉन्ड्री है, लाइव ड्राई क्लीनिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम अदर सर्विसेज में हैं, जैसे होम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग, कर्टेन क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, शू क्लीनिंग, बैग क्लीनिंग, सॉफ्ट टॉयज. तो ये सारी चीजों का क्लीनिंग होता है, वहीं पे होता है हमारे स्टोर. पूरा प्रोफेशनली मैनेज है हमारा. जैसे कि हमारा कस्टमर केयर सेंटर है, कॉल सेंटर है, जो कि नोएडा में है. So we have a team of 10+ customer care executives with a customer care head. और हम दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे स्टोर्स हैं, 20+ स्टोर्स हैं पैन इंडिया. ऑनलाइन ऑल्सो कस्टमर कैन बुक, तो कस्टमर ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकता है. और हमारा पिक एंड ड्रॉप सर्विस होता है, जहाँ पे भी हमारे स्टोर्स खुलते हैं. ऑल्सो इसमें और एक ब्रेक थ्रू ला रहे हैं हम. विद इन अ मंथ हमारा ऐप भी लॉन्च हो जाएगा,
वो भी काफी हाईटेक है। अभी अगर मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो इंडस्ट्री साइज इज अराउंड 2.2 लाख करोड़। ये मैं खाली इंडिया की बात कर रहा हूँ, और लेस देन 2% ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। यानी ये जो मार्केट है वो पूरा अनऑर्गेनाइज है। आप अगर किसी को कपड़ा देते हैं, कपड़ा आपका कहाँ धोबी घाट पे धुलता है, लोकल कहाँ धुलता है, आपको भी नहीं पता होता है। और इसीलिए द रिक्वायरमेंट इज देयर कि एक प्रोफेशनल लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर हो कि जो लाइव लॉन्ड्री करे और आपका कपड़ा कहीं बाहर नहीं जाएगा, कपड़ा वहीं पे धुलेगा और विद प्रोफेशनल केमिकल्स। अच्छा, एक कॉमन बिहेवियर है कि भी 5500 स्पेंड करती है पर फैमिली एवरेज कपड़े धोने के लिए। भी टारगेट मार्केट what यशेश wanted to say कि एक कंपनी जो भी मार्केट में जाने का प्लान करती है, तो हम देखते हैं कि कौन हमारा कस्टमर है, उसका मंथली स्पेंड क्या है, और अभी मार्केट में कंपटीशन कितना है। तो अगर आप इस स्लाइड पर देखेंगे कि अभी भी 98% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। लोगों का बिहेवियर अभी भी घर पर कपड़ा धोना है, मेट लगाकर, या ज्यादा से ज्यादा वो जो रोज प्रेस करने वाला धोबी आता है उसको दे देते हैं। ठीक है। बहुत थोड़े से लोग अभी भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के छोटी छोटी पुरानी ड्राई क्लीनिंग शॉप है उन पर कपड़ा देते हैं। बहुत सारे लोग जो हाई एंड ब्रांडेड ड्राई क्लीनिंग स्टोर हैं वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि उनके पास जाने से लोग बचते हैं। उनको डर लगता है कि यहाँ गए तो पता लगा कि जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा धुलाई का दे देना। और कुछ अभी जो बड़े शहरों में ऑनलाइन ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री ऐप आए हैं, उनके पास अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं होती। तो हमारा आपको बताना ये है कि एक हाउस होल्ड नॉर्मली 5,500 से 6,000 रुपया खर्च करता है। उसके बाद वो बचता है कि हाई एंड स्टोर्स पर जाने से। ऑनलाइन वालों का भरोसा नहीं। नेबरहुड वाले जो लोग हैं, जो पुराने ड्राई क्लीनर शॉप्स खोल कर बैठे हैं, उनका प्रोसेसिंग का पता नहीं। तो इन सारी चीजों में एक बीच में एक स्पेस आता है जिसको हम एक्वायर कर बैठे हैं। वो है कि कस्टमर को ट्रस्ट देते हुए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कपड़े को किस तरह ट्रीट करते हैं, ये दिखाते हुए काम करें। इतने महंगे ना रहें कि कस्टमर हमको देखकर डर के भाग जाए, और जो कस्टमर आज की डेट में खर्च कर रहा है उसी में उसको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये 3-4 चीजों को हमने आइडेंटिफाई करके इस स्पेस में अपनी कंपनी को फिट किया है। विशेष आप आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। अभी टारगेट मार्केट हमारा जो है वो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास है, 18 ईयर्स टू 55 ईयर्स। और ये मेट्रो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटी में इसको हम कर सकते हैं ओपन। सो वी आर इनवाइटिंग इन्वेस्टर्स कि जो भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी से है। एक जैसे मैंने पहले अगर बताया, आप देखें तो लॉन्ड्री बिजनेस में का जो गैमेट है, जो कस्टमर बेस है, वो उन स्टूडेंट्स है जो घर से दूर रहते हैं, उन सारे सिंगल वर्किंग एग्जीक्यूटिव जिन्होंने अभी अभी अपनी काम शुरू किया है, या फोर्स एग्जीक्यूटिव है जिनकी फैमिली किसी रीजन से उनके वर्क प्लेस पर नहीं रह पाती है, या वो कपल्स जिनके जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर जाते हैं। उन सब के लिए एक सोल्यूशन चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और क्वालिटी डिलीवर करता हो। तो ये, और इसके अलावा जो एक ट्रेडिशनल सेगमेंट है हाउस वाइफ और सीनियर सिटीजन्स का, जो नॉर्मली हाउस होल्ड को रन करने में सपोर्ट करते हैं या मेजर रोल प्ले करते हैं, दे आर तो एनीवेज एन ओल्ड सेगमेंट। जो नया सेगमेंट आया है वो अभी स्टूडेंट्स का है, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टेइंग इन प्राइवेट हॉस्टल्स, राइट। सिंगल वर्किंग एग्जीक्यूटिव जो अभी नई अपॉर्चुनिटीज के लिए घर से दूर रहते हैं, क्योंकि फैमिली को साथ शिफ्ट करना इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। किड्स की स्टडी, वाइफ की जॉब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वर्किंग कपल एनी हाउ दे, जब दोनों ही लोग काम कर रहे हैं तो कपड़े धोने के लिए भी एक समय निकालना बड़ी बात हो जाती है। सो हमारा 360 डिग्री मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा।
फ्रेंचाइजी को. इट विल बी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग. जो प्री लॉन्च मार्केटिंग रहेगा, फिर राउंड द ईयर मार्केटिंग रहेगा. वी विल ऑल्सो हेल्प, हमारे फ्रेंचाइजी को टाइप्स करने में भी हेल्प करेंगे. मे बी इट्स एसोसिएशंस, होटल एसोसिएशंस, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, हॉस्पिटल्स. हमारे क्या है कि वी हैव मेंबरशिप पैकेजेस फॉर कस्टमर्स. तो इवन उसमें भी हमारे जो पैकेजेस है उसमें भी वैल्यू एडिशन पैकेजेस हैं, राइट. तो ही कैन चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ द सर्विसेज. ही कैन, वो लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग तो करवा ही सकता है, बट उसके अलावा वो होम क्लीनिंग भी करा सकता है, कार क्लीनिंग भी करा सकता है, कारपेट, सोफा, कर्टेन, जो भी उसको सर्विस चाहिए वो सारी सर्विस वो कोई भी यूज कर सकता है पैकेजेस में से. ये हमारे मॉडल्स हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल्स. सो वी हैव टू टाइप ऑफ मॉडल्स. वन इज B2C, जो बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर है, और एक B2B है. B2C में हमारे पास कोको मॉडल है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड. कोको मॉडल है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड. थर्ड इज फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जिसको हम फोफो मॉडल बोलते हैं. अभी हमारे पास 3 कंसेप्ट है. एक है लाइव स्टोर का, जो मैंने आपको डिस्कस किया है, जो बड़ौदा, सूरत और हमारा दिल्ली में है. तो लाइव स्टोर जिसमें कि 2000 प्लस कारपेट एरिया चाहिए. देन वी हैव लॉन्ड्रोमेट जिसमें 600 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए. एंड देन वी हैव कलेक्शन सेंटर्स. तो हर एक सिटी में 400 to 600 स्क्वायर फीट डिपेंड करता है कि अगर आपको 4400 स्क्वायर फीट की भी शॉप मिलती है खुल जाता है, लेकिन जब काम पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत है. 400 स्क्वायर फीट से 600 स्क्वायर फीट का एरिया इस काम के लिए सफाइस. लाइव स्टोर इज कंप्लीट इन हाउस लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग यूनिट होता है हमारा, जिसमें मल्टीपल लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के मशीन्स होते हैं. इसमें स्टीम प्रेस टेबल्स भी मल्टीपल लगते हैं और पैकिंग करके हम कपड़ा देते हैं. व्हेन आई से पैकिंग मींस इट विद शर्ट कार्ड, प्लास्टिक बैग. तो व्हेन यू, जैसे आप कोई शोरूम से शर्ट परचेस करते हैं या कोई कपड़ा परचेस करते हैं, तो जैसे वो पैक करके देते हैं, इट इज द सेम कंसेप्ट. एंड लॉन्ड्रोमेट, ये लाइव लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग, वहाँ पे 2 हम हैवी ड्यूटी शॉप वॉशर लगाते हैं, ड्रायर लगाते हैं, और 1 या 2 स्टीम प्रेस के टेबल लगते हैं. तो उसमें 400 से 600 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए. यानी कारपेट अगर आप देखें तो 250 से 350 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया चाहिए. और कलेक्शन सेंटर है वो पिक एंड ड्रॉप सेंटर है, जिसमें कि वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, बट वहाँ पे खाली पिक एंड ड्रॉप होता है कि जो हमारे प्रोसेसिंग यूनिट पे वो कपड़े सारे प्रोसेस होंगे. तो हर एक सिटी में हम 1 या 2 लाइव स्टोर ओपन करेंगे, बाकी कपल ऑफ लॉन्ड्रोमेट्स करेंगे, और उसके अलावा कलेक्शन सेंटर्स खुलेंगे. और कलेक्शन सेंटर्स में अराउंड 150 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया चाहिए. तो आइडिया ये है, विशेष गो ऑन द बैक साइड. यस सर. आइडिया ये है कि जहाँ लाइव स्टोर है, अगर एक शहर में एक लाइव स्टोर खोला तो कस्टमर को, अगर वो शहर 10 किलोमीटर के एरिया में है, तो वहां से हर कस्टमर को लाइव स्टोर पर आने में दिक्कत होता है. अब कस्टमर एक शहर में 10,000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि अलग अलग रेजिडेंशियल पॉकेट्स में हमारे साथ कुछ लोग पार्टिसिपेट करें और कलेक्शन सेंटर खोलें जिनकी प्रोसेसिंग लाइव स्टोर पर होगी. तो किसी भी कस्टमर को अगर प्रोसेसिंग देखना है तो वो लाइव स्टोर जाकर देख सकता है. अदरवाइज वो कलेक्शन, नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर पर ड्रॉप करके अपना गारमेंट उसी क्वालिटी के साथ प्रोसेस करा सकता है. तो ये वो है. दूसरा है लॉन्ड्रोमेट. लॉन्ड्रोमेट इज अगेन ऑलमोस्ट सेल्फ सफाइसिंग, अपने आप में पूरी तरह से इक्विप्ड एक फॉर्मेट है जो कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ है, और इसके लिए एरिया भी कम चाहिए होता है, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट का एरिया हर मार्केट में निकालना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी है. तो इसलिए छोटा फॉर्मेट डेवलप किया है जिससे कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, और उनको हम कैसे, किस चीज़ की क्या प्रोसेसिंग करनी है, वो हम सारी एंड टू एंड ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है.
Yashish, now you can take through the expenses and investment and so and so. Sure. So the investment for live store is 1.62 CR, जिसमें मशीनरी इक्विपमेंट्स अराउंड 1 crore 19 lakhs के हैं. Working capital is around 25 lakhs 30,000 and franchisee fee is 15 lakh plus GST. Now I will come to the working sheet. लाइव स्टोर की जो वर्किंग शीट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है 1.62 CR है. अभी ईयर 1 में if we process 95,713 clothes in a year, again we have a detailed breakup of these as well. Every month कितने कपड़े आएंगे तो 95,713 clothes होंगे, तो वो सारा ब्रेकअप है. 95,713 क्लोथ्स आए और एवरेज हमने रेट किया है कि 125 रुपीज, बिकॉज इसमें क्या होता है कि शर्ट का अलग रेट होता है, सूट का अलग होता है, साड़ी का अलग होता है, सलवार का अलग होता है, तो एवरेज हमने 125 रुपीज काउंट किया है. तो उसका रेवेन्यू होता है 1196,4145. और इसमें जो एक्सपेंस है जिसमें कि ड्राई क्लीनिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सारी चीज आ जाती है, वो 60,72,000 है. और रॉयल्टी 10% है हमारा, जिसमें कि हम रॉयल्टी में क्या है, पहले 6 मंथ्स हम रॉयल्टी नहीं लेंगे, उसके बाद 7 मंथ से आपका रॉयल्टी स्टार्ट होगा. रॉयल्टी 10% है, तो द प्रॉफिट कम्स टू 46,95,000. तो अगर इतने कपड़े हम प्रोसेस करते हैं 95,713, जो कि हमने एकदम एवरेज लिए हुए, काउंट किए हुए हैं, देन ऑल्सो यू गेट अ रिटर्न ऑफ 29%. अभी जैसे सेकेंड ईयर में आप देखेंगे तो द कपड़े 1,19,641 हो रहे हैं. सो लाइकवाइज जो बिलिंग है, एक्सपेंस है, रॉयल्टी निकाल के जो प्रॉफिट बचता है, तो दैट इज अराउंड 52% क्यूमुलेटिव गेन. ईयर 3 पे जैसे, क्योंकि एवरी ईयर क्या है कि मार्केटिंग तो फ्रॉम द फर्स्ट डे प्री लॉन्चिंग से स्टार्ट होगा और राउंड देयर मार्केटिंग रहेगा. प्लस वी हैव डिफरेंट पैकेजेस, ऑफर्स फॉर फेस्टिवल्स, फॉर डिफरेंट जैसे अभी हमारा अक्टूबर से मार्च तक हमारा सीजन होता है, जिसमें कि फेस्टिवल्स आते हैं, वेडिंग सीजन्स आते हैं, तो उसके लिए हमारे अलग अलग ऑफर्स होते हैं कस्टमर्स के लिए, तो उसमें हम मेंबरशिप पैकेजेस देते हैं. सो लाइकवाइज ईयर 3 में 1,49,552 कपड़े होंगे. सो आपका जो प्रॉफिट है, रिटर्न है, वो 95% होगा. एंड ईयर 4 147%. तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 3 साल में तो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ये हमने एवरेज काउंट किया हुआ है. आइडियली क्या है कि अभी जैसे आपने कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर लिया, होटल से टाई अप कर लिया, हॉस्पिटल से टाई अप कर लिया, तो उनके क्या है, डेली बल्क में कपड़े आते हैं, तो दिस फिगर यानी आपका आरओआई जल्दी आ जाएगा. ये तो हमने प्योरली एक एवरेज पकड़ के एक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्किंग शीट दिखाया. अभी हम बात करें फ्रेंचाइजी वन कंपनी ऑपरेटेड की, तो उसमें क्या है कि भाई इन्वेस्टर को भी आपको शेयर देना पड़ेगा. अभी कंपनी ऑपरेटेड है तो कंपनी विल ऑल्सो फाइंड एक्टिव पार्टनर की जो रन करेगा, फ्रेंचाइजी विल इन्वेस्ट. तो उसमें आरओआई फर्स्ट ईयर 18% बैठेगा, सेकेंड ईयर 34% है, थर्ड ईयर 61% है और फोर्थ ईयर 94% है. तो उसमें यू कैन सी कि फोर्थ ईयर पे आपका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है आपका, वो आता है. तो आइडियली अगर आप खुद रन करते हैं स्टोर, तो आपको जल्दी प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी फास्ट आता है. इसमें एक चीज और है कि फ्रेंचाइजी हम इसलिए भी ढूंढते हैं कि किसी नए शहर में, जिन शहरों में हमारी अपनी वर्किंग है या अपनी लिविंग है, वहां तो हम लोगों को जानते हैं. अब किसी नए शहर में जाएंगे तो हमें वहां का लोकल आदमी चाहिए जो जानता हो कि कहाँ पर ज्यादा अच्छी पॉपुलेशन रहती है. अगर वो 10-15 साल से किसी शहर में रह रहा है तो 500-700 लोगों को तो वो ऐसे भी जानता होगा. हर आदमी के फोन बुक में 1000-1500 नंबर आजकल होते ही हैं. तो आइडिया ये है कि बिजनेस के शुरुआत में वो जो फोन बुक है वही आपका बिजनेस बन जाती है,
क्योंकि अगर आप उसमें से ही अपने कस्टमर्स ढूंढते हैं, उसमें से ही आप कन्वर्जन करते हैं, लोगों से रेफरेंस लेते हैं, उनको मेंबर बनाते हैं, तो जो रेवेन्यू लाइन है वो काफी अच्छी इम्प्रूव कर जाती है। दूसरा, यशेष एक बात को टच करने से छोड़ गए, क्योंकि कोरोना के वजह से लोगों में काफी एप्रीहेंशंस हैं। तो हमने अपना जो रॉयल्टी है वो 10% ना रख के हमने फिक्स कर दिया है। पहले 6 महीना हम नहीं लेते, क्योंकि अभी किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद एक लेवल पर पहुंचने में टाइम लगता है, और हमारा अपना लाइव स्टोर खोलने का एक्सपीरियंस है कि 5 से 6 महीने में वो लाइव स्टोर अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेता है। तो हम 6 महीने कुछ भी नहीं लेते। 7वें महीने से हमने अभी कोरोना के बाद से अपना फ्रेंचाइजी रॉयल्टी जो है वो फ्लैट कर दिया है फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। तो हम इंस्टेड ऑफ 10% हम सिर्फ 1 लाख रुपए महीना लेते हैं, जिससे कि फ्रेंचाइजी को अगर अगर वो 15 लाख और 20 लाख रुपए की सेल भी करता है, जो कि हमारे आउटलेट्स पर, लाइव आउटलेट्स पर एवरेज सेल आती है 15 लाख की, तो उस केस में भी फ्रेंचाइजी को फायदा होता है। ठीक है। तो अभी हमने एक फ्लैट रॉयल्टी का भी स्ट्रक्चर शुरू किया है, जिससे कि मेरा जो भी एसोसिएटेड फ्रेंचाइजी है वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट की रिकवरी कर पाए। यशेष, टेक इट फॉरवर्ड। सेकंड मॉडल जो हमारा है वो है लॉन्ड्रोमेट, जिसमें 250 से 350 कारपेट एरिया चाहिए, यानी करीबन 400 से 600 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर स्टोर चाहिए। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स है वो करीबन 23 लाख के आसपास है। वर्किंग कैपिटल मंथली जो है वो 1,64,600 है। अदर एक्सपेंसेस हैं वो 1,40,000 है, और फ्रेंचाइजी फी 4 लाख रुपीज है। तो इट कम्स टू अराउंड 29,89,600। तो इसमें जो वर्किंग शीट है उसमें हमने एकदम एवरेज काउंट किया हुआ है कि जैसे कि पहले साल आपने 400 कस्टमर बना लिए, अभी उसमें से वी हैव कंसीडर ओनली 40% फॉर ड्राई क्लीनिंग, खाली 40% लोग ड्राई क्लीन कराते हैं। सो 160 कस्टमर्स होंगे, और ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स पर कस्टमर खाली 9 ही क्लोथ्स आते हैं, तो इट कम्स टू 1,440 क्लोथ्स होंगे। एवरेज रेट हमने 110 काउंट किया हुआ है, और साथ में एक होता है कि ड्राई क्लीनिंग जो पर पीस होता है, और लॉन्ड्री जो होता है वो किलो में होता है। तो दूसरा हमने ये काउंट किया है कि भाई खाली 50% लोग ही लॉन्ड्री कराते हैं। तो 400 का 50% 200 कस्टमर्स होते हैं, और लॉन्ड्री क्लोथ्स पर केजी में खाली 10 किलो ही कराते हैं एक महीने में। आइडियली ज्यादा होते हैं, बट हमने एक एवरेज काउंट किया हुआ है कि 10 केजी पर कस्टमर कराते हैं, तो 2000 किलोज होते हैं, और उसमें एवरेज रेट 70 रुपीज काउंट किया हुआ है। तो जो रेवेन्यू होता है इन दोनों का, ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री का, इट कम्स अराउंड 2,98,400। वही रॉयल्टी जैसे हमने एक फिक्स कर दिया है कि पहले 6 महीने हम नहीं लेंगे, 7 मंथ से हम 20,000 पर मंथ रॉयल्टी लेंगे, प्लस ड्राई क्लीनिंग चार्जेस इसमें लगेंगे 63,360। तो टोटल ये रॉयल्टी, ड्राई क्लीनिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने ऑलरेडी बताया 1,64,600 है, जो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं हम। तो 2,47,960 आपका खर्चा लगेगा, एक्सपेंस लगेगा, और रेवेन्यू आपका 2,98,400 है। तो आपका प्रॉफिट पर मंथ बैठेगा 50,440। ये हमने एक एवरेज काउंट किया हुआ है। अभी जैसे जैसे आपके कपड़े बढ़ेंगे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अभी सर इसमें जो गणित है वो ये है कि भाई पहले 6 मंथ हम एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, प्लस राउंड द ईयर तो हमारा मार्केटिंग चलेगा। तो पहले 6 मंथ में हमने 300 कस्टमर बना लिए, और हमारे जो पैकेजेस है वो 2,000 से 25,000 के हैं। तो हम एवरेज 2,000 का पैकेज बेचते हैं कस्टमर को पहले 6 महीने में, तो आपके पास 6 लाख रुपए आ जाते हैं। अभी ये 2,000 रुपीज है, वो तो 2 महीने में आपका पैकेज खत्म हो जाएगा। आज अगर हमारे घर पे भी अगर हम धोबी को देते हैं कपड़ा, तो 1,000 रुपीज तो बिलिंग आता है एवरी मंथ। तो 2 महीने में तो आपका 2,000 का पैकेज खत्म हो जाएगा, तो फिर वो से खाली रिन्यू। यशेष
जो 2000 रुपीज पर मंथ वो सिर्फ प्रेसिंग का आता है, क्योंकि आजकल तो धोबी भी 5 रुपए के कपड़े का प्रेस करने का है। यस सर, अगर धोना प्रेस करना सब कुछ इंक्लूसिव है तो कस्टमर विल नॉट फाइंड टफ टू पे मोर देन दैट। तो आइडिया ये है कि 2000 रुपए के पैकेज से उसको एंगेज करना है, एंड देन यू हैव अ पैकेज टिल 25,000 रुपीज पर कस्टमर पर ईयर। किसी को आप कितना भी दे सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एंगेज करते हैं। कस्टमर्स आर देयर। बड़ौदा स्टोर पर हमारे 200 मेंबर हैं, जिसमें से 50% 25,000 की मेंबरशिप लेकर काम करते हैं, ठीक है। बाकी 10,000 और 5,000 पर है। तो हमने तो 2,000 की बड़ौदा में बंद ही कर दी है, लेकिन जहाँ भी हम नया स्टोर खोलते हैं वहाँ शुरुआत 2,000 से करते हैं, जिससे मेंबर बनने में कस्टमर्स को हिचक ना हो। अगर उनको डाउट रहेगा, पहले हर आदमी चेक करना चाहता है कि ब्रांड काम करेगी कि नहीं करेगी। एक बार वो कंफर्टेबल हो जाते हैं यूज करने के बाद, उनको क्वालिटी पर, ऑपरेशंस पर, डिलीवरी पर कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो दे कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेंबरशिप दे आर गिविंग टू। कैरी ऑन निकेश। श्योर। सो आफ्टर 6-7 मंथ रिन्यूअल आएगा। सो रिन्यूअल जब आएगा तो यू विल गिव हिम एनुअल पैकेज कि जिसमें उसको सर्विस वैल्यू एडिशन मिल जाएगी। तो say for example if he takes 10,000 membership, he will get around 12,000 services, और उसमें भी there is no time limit, he can use it across the year, he can but ideally हमारे जैसे बड़ौदा स्टोर है तो उसमें 25,000 के भी साल में 3 से 4 बार रिन्यूअल होते हैं, क्योंकि जैसे उसमें सारी सर्विसेज हैं, उसमें देर इज नो बाइंडिंग कि ही कैन ओनली यूज लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग और ओनली होम क्लीनिंग, तो कोई भी सर्विस यूज कर सकता है। सो 8-9 मंथ में आपके पास और 30 लाख रुपए आ जाते हैं, तो टोटल 36 लाख रुपीज तो आपके पास 8-9 महीने में ही आ जाते हैं, प्रोवाइडेड आप इतने मेंबर्स बना लेते हैं, मेंबरशिप पैकेजेस बेचते हैं। तो आप अगर कंसीडर करेंगे, काउंट करेंगे, तो 1.25 से 1.5 साल में तो आपका ब्रेक इवन आ जाता है। और इसमें एवरी डे, और ये मैंने आपको 7-8 मंथ पे अभी 300 ही कस्टमर काउंट किए, आइडियली 350-400 कस्टमर हो जाएंगे जब तक 8-9 मंथ स्टार्ट होगा। और ये तो मैंने 10,000 रुपीज एवरेज काउंट किया। अगर आप 25,000 की मेंबरशिप बेचते हैं, देन द मेंबरशिप पैकेज, द रेवेन्यू विल गो मोर देन 70 lakhs। बट ये एक एवरेज हमने वर्किंग शीट काउंट किया। कलेक्शन सेंटर में 150 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया चाहिए, उसमें करीबन 9,80,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। उसमें पीक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, तो अप टू ब्रेक इवन 50% शेयर रहेगा फ्रेंचाइजी को, आफ्टर ब्रेक इवन 40% रहेगा। प्रोसेसिंग सारा हमारा लाइव स्टोर पे होगा। तो कलेक्शन सेंटर जो भी फ्रेंचाइजी लेता है उसको खाली पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज ही देनी है कस्टमर को, बाकी सारा प्रोसेस, पैकेजिंग, एवरीथिंग विल बी डन एट आवर लाइव स्टोर। इसमें भी ही कैन सेल द मेंबरशिप पैकेजेस, द सेम थिंग दैट ही कैन डू इन लाइव स्टोर और फ्रंट रोड। तो पैकेजेस तो सेम ही रहेंगे कस्टमर्स के लिए। इसमें भी से फॉर एग्जांपल 400 कस्टमर वो बनाता है और उसमें से 50% ही खाली एक्टिव हैं, 200 कस्टमर्स प्रोसेस कराते हैं, देन ऑल्सो ही गेट्स 32% ROI। एंड लाइकवाइज जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ेंगे उसका रिटर्न फास्ट आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि वी आर ऑल्सो इनटू अदर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम ड्राई क्लीनिंग। हमारा शू क्लीनिंग, बैग क्लीनिंग, होम क्लीनिंग है, कर्टेन क्लीनिंग है, कारपेट क्लीनिंग है, सोफा क्लीनिंग है, कार क्लीनिंग है। तो ये सारे सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज है हमारा। बड़ौदा में हमने सन फार्मा के लिए एक अलग प्लांट, B2B प्लांट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हर रोज के 5,000 कपड़े आते हैं। सेम वे मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में भी हमारा एक इन हाउस ही सेटअप है, तो वहां पे भी 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। तो ये जो यशेष बताना चाहते हैं वो ये है कि हम अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, अगर किसी के पास कोई बड़ा हॉस्पिटल है
तो हम टाई अप करके उस पर भी काम कर सकते हैं। वहाँ हम कैप्टिव प्लांट लगाते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल को सर्विस करता है, और इस प्लांट को हम लंबे, इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है। हॉस्पिटल को कुछ नहीं लगाना होता, उनको लोकेशन देनी होती है, स्पेस देना होता है, और यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे बिजली, पानी। इन सबके बाद हम उससे एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे हमारी रिकवरी हो जाए। अगर ऐसा कोई हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो वो हमारे साथ सर्टेन परसेंटेज का पार्टनर हो सकता है। So even with investment or without investment, people can come up to us and help us get such kind of opportunity, and they can get, share in the profit. So we are also coming up big time in home cleaning. We are going to add, whitewashing, floor polishing, and things like that. Apart from sofa cleaning, carpet cleaning, and upholstery. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मार्च 2020 में 20 लाख। अभी तो मुश्किल हो गया क्योंकि कोरोना के बाद से एकदम डगमगा गया है, बट मार्च तक वी वर डूइंग इट वेरी वेल। आइडियली तो सिनेरियो अभी इसका बढ़ता है, हमारी वाइट वॉश के ऑर्डर अब आने शुरू होते हैं, लेकिन उतने क्वांटिटी में नहीं आ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं अपने घरों में काम कराने से, लेकिन probably by the time of next year we'll be having a huge opportunity. Shoes and bags are again, one of the very peculiar and skillful job. लोगों के पास बहुत महंगे महंगे बैग्स होते हैं, लुई विटॉन, गुसी and so on and so forth. Similarly, shoes. So we are having expertise in doing so. We improve the quality of a shoe in such a manner कि वो पहचान में नहीं आता है वो इतना घिसा हुआ है, right? So we are also looking for these kind of opportunities. Whosoever will be partner with us, he'll get all these business opportunity and skill set to satisfy customer requirements. So thank you, investors, for hearing our opportunity. So Thank you, Mr. Yashish. Thanks a lot.